Hi children, good morning. Today we are going to learn about the Legislative Assembly and Legislative Council. In the previous class we learned about the state government and power sharing, the state legislature we started. Now we are going to see the Legislative Assembly or Vidhan Sabha. The another name is Vidhan Sabha. The Legislative Assembly is the real center of power in the state and its size depend upon the population of the state. The number of members of Legislative Assembly means MLAs cannot be less than 60 and not more than 500. So Legislative Assembly a real center of the power in the state. Actually the real power is vested in Legislative Assembly, not in Legislative Council. And the size of Legislative Assembly, it is depend upon the population of the state. According to the population, the member of MLAs also will decide. The number of member of Legislative Assembly cannot be less than 60 and not more than 500. ऐसा बताया कि द नंबर ऑफ MLAs इट कैनॉट बी लेस दैन 60 का नीचे नहीं होना और 500 के ऊपर भी MLAs एक स्टेट में नहीं होना. बट इन सिक्किम it not less than 30 members. सिक्किम एक स्मॉल स्टेट है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली the 30 members के नीचे नहीं जाना, ऐसा रूल. एंड इन गोवा एंड मिजोरम हैव 40 members each. In Goa and Mizoram, Legislative Assembly is having only 40 members because these states are very small. MLAs are elected by the people using adult franchise for a period of 5 years. Through the election, we are selecting our MLAs and it is for 5 years. And after the election, the party which is getting majority seat, they can form the government and leader of that party will be the chief minister of that state. The Legislative Assembly choose one of its members as the speaker and another as deputy speaker. Among these members, among these MLAs, one member को speaker करके select करते and another member deputy speaker, means speaker and deputy speaker को इसमें से ही सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके. एंड सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज आर फॉलोज. एनी इंडियन सिटीजन, मेल और फीमेल, हैविंग द मिनिमम एज ऑफ 25 years can contest for the election of legislative assembly. So any Indian citizen means above 25 years can conduct for the election. मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, 25 years कंप्लीट होना है. एंड सेकेंड, द टर्म ऑफ द हाउस इज़ 5 years. मीन्स एक बार सेलेक्ट हो गया तो 5 years तक MLA बन के रह सकते हैं. एंड इन द इलेक्शन द सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट फॉलोड. वी नो दैट सीक्रेट बैलेट सिस्टम है इंडिया में पूरे इलेक्शन में. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. SC ST एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन दिया है, इतना परसेंटेज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होना है एंड इतनी परसेंटेज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी शुड बी देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली. इट इज़ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द असेंबली कैन बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ये जो असेंबली इन बिटवीन में यदि वो डिसॉल्व करना है कर सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर कैन डिसॉल्व द असेंबली. गवर्नर को ये वो पावर असेंबली डिसॉल्व करने का. एंड स्पीकर ऑफ विधान सभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द रेसोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली. इवन स्पीकर को भी रिमूव कर सकते, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेसोल्यूशन पास होना है. स्पीकर के अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके अगेंस्ट में सब मिल के डिसीजन ले सकते और स्पीकर निकाल सकते हैं. एंड डेप्यूटी स्पीकर कैन अज्यूम द चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. ऐसे स्पीकर नहीं रहते या रिमूव करते और एनी अदर रीज़न से नहीं रहते तो डेप्यूटी स्पीकर वो जो स्पीकर की ड्यूटी स्पीकर की एब्सेंस में कर देते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल.
means Vidhan Parishad. So the member of Legislative Council MLC, member of Legislative Assembly MLAs, the MLC means a member of Legislative Council are not directly elected by the people, but they are elected in the following way. हम उसको डायरेक्ट MLC को कभी इलेक्शन नहीं होते, हम उसको वोट नहीं देते, बट उसको कैसे इलेक्शन होते, वो इलेक्टेड मेंबर में से ही सिलेक्ट होते हैं 1/3 बाई द MLAs. जो MLA हमने सेलेक्ट किया उसमें से 1/3 मेंबर को MLAs सेलेक्ट करते, एंड 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज़, लोकल पंचायत समिति ऐसा लोकल बॉडी से 1/3 मेंबर हो जाते, एंड 1/12 मेंबर बाय टीचर्स हु टॉट इन सेकेंडरी स्कूल. इन स्टेट में जो स्कूल टीचर में से 1/12 नंबर सेलेक्ट होते, एंड 1/12 बाई ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया and who have graduated with at least 3 years standing. Means 1/12 members यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स से सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड 1/6 मेंबर्स आर फेमस पीपल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. जैसा आर्ट, लिटरेचर, साइंस में जो फेमस पीपल है, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स होगा, कोई साइंस में PhD किया हुआ फेमस पर्सन, लिटरेचर लिखने वाला जो सिंगर्स, ऐसा किसी में से 1/6 मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं. सो द मेंबर्स ऑफ MLCs शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ MLAs, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट हैव लेस दैन 40 मेंबर्स. सो द MLC का नंबर MLA का 1/3 नंबर होना चाहिए. मीन्स MLA से ज़्यादा MLC नहीं होना है, एंड 40 मेंबर्स एटलीस्ट होना कंपलसरी है. Especially the Jammu Kashmir Vidhan Parishad has 36 members. Minimum age of Indian citizen to become MLC is 30 years. For MLA 25 years age limit, and for the MLCs minimum age 30 years. So this is all about the Vidhan Sabha and Vidhan Council, Vidhan Parishad. Now function of the legislature. The state legislature has various functions such as to make laws on the subject given in the state list as per the Indian Constitution. We have already learned about the state list, means state government can make the law in some subjects like पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब बातों में स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. सो द मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन टू द स्टेट लिस्ट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेट लिस्ट में जितनी सब्जेक्ट दिया उसके ऊपर लॉ बनाना है फर्स्ट फंक्शन.